Hello students, today we are going to discuss about analog circuits. This is a subject in electronics and communication engineering. In analog circuits, we will be discussing about operational amplifiers today. I am Dr. Shailendra Tiliani from Babu Panasidas National Institute of Technology and Management, Lucknow. The topics today which we will be discussing will be the basic introduction of operational amplifier. Then we will be discussing about some characteristics of operational amplifier. Then we will be discussing a very important concept, that is of virtual ground, which is very useful to solve numericals while doing operational amplifiers. Then we will also discuss about the negative feedback in op amp, why negative feedback is required, what is the importance of negative feedback. Actually, operational amplifier is a very important topic in this subject, rather in electronics and communication engineering as a whole, because operational amplifier is a tool which helps you out in basically designing circuits, basically where we need amplifications, where we need mathematical calculations, where we need certain concepts which we have to analyze as log, anti-log, oscillator circuits, and this is a very useful device in electronics and communication engineering. Now, why do we call it operational amplifier? Why do we call it operational amplifier? We call it operational amplifier because, as the name implies, operational amplifier can do mathematical functions. Mathematical functions, as I have already told you, are doing summations, doing subtractions, doing certain you can say it can work as a multiplier, it can work as a log anti-log amplifier, and so on. Now, before starting the main topics, let me give you a small glimpse of what operational amplifier is. As you can see in your slide over here, operational amplifier is nothing, it is just a follow up what you have studied so far. You have studied differential amplifiers, you had used BJTs in that, and in that case differential amplifiers were nothing but it was specified as differential amplifiers, they amplify the difference at the input. Now, operational amplifier is also of the same family, but it holds various blocks, it is a multi-stage concept, and that is why sometimes operational amplifier is also called a multi-stage amplifier. As here in the figure you can see, I have made 3 blocks and there are some wires coming out of a triangular waveform, the triangular form, sorry. Now, this triangular form, if we take it, and this is just an replica of it, you can see the first block over here, it is written as differential amplifier, the second block is voltage amplifier, the third block is output amplifier. Then we have terminals over here, this I have marked as inverting input, this as non-inverting input over here. These are a sort of power supplies, plus V and minus V over here, and there is an output, we normally take it as V naught. Now, what happens whenever we see this, we see over here that normally in different stages we involve capacitors, as we have seen in the case of BJTs also. When we basically club down two blocks over here, we used to design a multi-stage concept, we used capacitors over here in between the stages, and capacitors were nothing but to basically filter out unnecessarily waveforms or to reduce the distortion of it. But in this particular case, we have not used any of such components like capacitors. Now, here is one important point which I want to discuss, why we have not used any of the capacitors over here. The reason behind that is operational amplifier is basically a versatile device. This is also important. ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि अगर हम वर्सटाइल डिवाइस की बात करते हैं तो वर्सटाइल मतलब ये होता है कि हम AC और DC दोनों को एक साथ एम्पलीफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस में, और यही इसको सबसे अलग बनाता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इट वर्क्स अंडर बोथ AC एज वेल एज DC कंडीशंस.
over here there is a terminal, it's called inverting input, जिसको हम हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है जिसको हम हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. एक आउटपुट है और ये पावर सप्लाई है, एज आई हैव टोल्ड यू. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ऑप एम्प, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि हम इसके अंदर का फंक्शनिंग समझें. और फंक्शनिंग समझने के लिए हमें इसको बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक समझना ज़रूरी पड़ेंगे. और दूसरा ये समझना पड़ेगा कि हम जब इसके इनपुट में कोई भी सिग्नल एनालाइज करते हैं या डालते हैं तो उसका आउटपुट क्या रिजल्ट देता है. और इसी हिसाब से हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी एनालाइज करेंगे आज, जिससे ये पता चलेगा कि हम बेसिकली उसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम कर क्या रहे हैं. तो ये ब्लॉक्स को हम अब इक्विवेलेंट सर्किट्स में कन्वर्ट कर लेंगे. और जहाँ तक फिर से मैं एक बार इसको समराइज़ कर दूँ, ये और कुछ भी नहीं होता है. ये आपने बीजेटीज़ में पढ़ रखा है. ये बैक टू बैक ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं और उसी का ही ये कॉन्सेप्ट है. दो ट्रांजिस्टर्स को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं और वो डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. फाइन. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ऑपरेशनल एम्पलीफायर अब हम इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे. हमने इसमें से सारे ब्लॉक्स हटा दिए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो फिगर्स आपके सामने हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग और ये आउटपुट है. इसको अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो अगर हम सपोज इन्वर्टिंग पे, मतलब इन शॉर्ट अगर हम इस चीज़ को ये बोले तो अगर हम इन्वर्टिंग पे एक इनपुट लगा रहे हैं, सपोज दिस, इट्स अ साइनोसाइडल वेव एज यू कैन सी. अगर हम ये इनपुट इन्वर्टिंग पे लगा रहे हैं तो आउटपुट हमें इसका रिवर्स मिलेगा. और यही डेफिनेशन है इन्वर्टिंग इनपुट की, यानी कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी ये हमारा यहाँ आ गया और ये हमारा यहाँ आ गया. और ऑब्वियसली क्योंकि ये एम्पलीफायर है तो एम्पलीफिकेशन प्रोसेस इसमें कैरी आउट होगा. सेकंड, अगर हम इन्वर्टिंग पे वही वेव फॉर्म लगाएं, साइनोसाइडल वेव, तो आउटपुट हमें जो है सेम मिलेगा, यानी इन फेज. अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन इन्वर्टिंग वर्ड इसीलिए इसमें पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होता है. कुछ बेसिक और भी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए जो हमें इम्पोर्टेंट हैं और हमें जाननी चाहिए. वो ये है कि ये एक हाई गेन डिवाइस है. गेन क्या होता है बेसिकली, अभी तक किसी भी चीज़ का गेन आप इलेक्ट्रॉनिक्स में निकालते आए हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ए से, और उसका नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं होता, वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है. वॉट एवर आउटपुट वी गिव वी गेट अपॉन द इनपुट वी गिव, दैट मीन्स V0 अपॉन V1. यहाँ ये आउटपुट है और ये इनपुट है. अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जो डिफरेंशियल गेन के में भी आपने कॉन्सेप्ट में देखा था, डिफरेंशियल गेन एम्पलीफायर में जो बीजेटीज़ के रेफरेंस में था, इट इज़ द सेम थिंग. इसमें क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो गेन है वो आउटपुट अपॉन द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट है. दैट मीन्स VD जो है यहाँ जो रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, दिस VD इज़ नथिंग बट अगर हम यहाँ पे कोई V1 या V2 लगाते हैं, दो वोल्टेजेस, तो VD इज़ नथिंग बट इट इज़ द डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1. As you can see, op amp is a very high gain differential amplifier. op amp का गेन बहुत हाई होता है और जो इसकी पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है सिग्नल पे. अगर आप सिग्नल इन्वर्टिंग पे लगाते हैं तो आपको एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट का सिग्नल मिलेगा, और अगर आप नॉन इन्वर्टिंग पे लगाते हैं तो आपको एक सेम जीरो फेज डिफरेंस का सेम आउटपुट मिलेगा बट एम्पलीफाइड मिलेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं. op amp were used primarily to perform mathematical operations, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑसिलेटर्स, फिल्टर सर्किट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन
सर्किट्स हैं, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, ये कॉमन फंक्शंस ये कर सकता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक वर्सटाइल डिवाइस है जो कि AC और DC दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। इट कैन वर्क ऑन बोथ द बोर्ड्स। ये डुअल सप्लाई डिवाइस है, इसमें जैसे कि आपने इनिशियली देखा +V और -V डुअल वोल्टेजेस लगते हैं एंड इट होल्ड्स अ वेरी हाई गेन एंड इट गिव्स अ गुड एम्पलीफिकेशन। फाइन। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें दो फिगर्स बने हुए हैं। एक फिगर है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का और एक फिगर है इसमें प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये दोनों फिगर्स समवॉट सिमिलर ही हैं, बट इसमें जो डिफरेंस है बेसिकली कि जब हम आइडियल केस लेते हैं तो हम आइडियल पैरामीटर्स लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम नॉर्मल सारे कैलकुलेशंस आइडियल कंडीशन में करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं। हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं सकते, बिकॉज जब हम कोई पैरामीटर आइडियल लेते हैं तो हमें उसका प्रैक्टिकल पैरामीटर भी नोन होना चाहिए। वी शुड नो व्हाट द प्रैक्टिकल पैरामीटर इज, until then we will not be able to compare them। यानी कंपैरिजन के पर्पज से हमें उसका दोनों पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए। जो आज ये जो स्लाइड इसमें है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सेम। यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले हमने एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर रखा है। यहाँ पे मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, दिस इज जेड इन और कुछ नहीं है, दिस इज इनपुट इम्पिडेंस। अगर हम आइडियली लेते हैं तो हम इनपुट इम्पिडेंस को इन्फिनाइट लेते हैं, और अगर हम प्रैक्टिकली लेते हैं तो हम इसको किसी वैल्यू का लेते हैं, और दैट वैल्यू कैन बी इन मेगा ओम्स। मेगा ओम्स मीन्स वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस ओवर देयर। इसी तरह ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इसमें भी कॉमन है। वी इन इसमें हमने अप्लाई कर रखा है। देन देर इज अ सोर्स, दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, इट इज AV V in। AV V in is nothing but it is the gain into the input V in। Fine। This is then over here आप यहाँ देख सकते हैं एक पैरामीटर है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज Z out, और इसको हमने 0 ले रखा है, एंड दिस इज नथिंग बट द आउटपुट इम्पिडेंस। और प्रैक्टिकल के केस में ये आउटपुट इम्पिडेंस यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ 0 ले रखा है। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी इट इज वेरी स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल का मतलब हुआ आइडियली नेग्लिजिबल। आइडियली नेग्लिजिबल। फाइन। अब इस कंडीशन में जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको सम अप करें तो in case of ideal amplifier we take input impedance as infinite and the output impedance as practically 0. Then the Zin is the output impedance, input impedance which is infinite, and Z out is the output impedance. Then there is a source A V in over here, and this is the practical case. We take large value of Zin practically and a very small value of Z out. Fine. Now coming to the next slide, I have summarized this down. As you can see, the input open loop gain, which is nothing but AV, इसको हम AV में भी represent कर सकते हैं, which is nothing but V out upon V in. And as I told you, यहाँ पे जो input होता है VD होता है, and it is nothing but V1 minus V2, which is the difference of inputs applied at inverting and non-inverting terminals. इसमें जो बैंडविड्थ होता है वो 0 फेज शिफ्ट एंड इन्फिनाइट स्लू रेट होता है, 0 आउटपुट इम्पिडेंस होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 0 नॉइज फैक्टर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इन्फिनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है। नाउ दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच इज़ टू बी डिस्कस्ड। ये CMRR के नाम से है, ये आपको प्रोमिनेंटली इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। CMRR इज नथिंग बट द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, और अगर इसको आप वैल्यू वाइज डालें तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ AD अपॉन ACM, यानी डिफरेंस मोड गेन अपॉन द कॉमन मोड गेन। अब आपको यहाँ थोड़ा सा इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में देखें,
हम ये ऑप एम्प बनाते हैं, दिस इज़ द ड्यूअल पावर सप्लाई, हम इसको प्लस वी माइनस वी से प्लस और माइनस वी तक भी अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट नोटेशंस। ये एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, एंड दिस इज द आउटपुट। AD as you know is nothing but what, आउटपुट अपॉन, अगर हम यहाँ इनपुट्स डाल रहे हैं V1 और V2 तो अपॉन V1 माइनस V2। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनपुट का डिफरेंस ये एम्पलीफाई करता है, ये बहुत हाई गेन एम्पलीफायर है, तो इनपुट के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, तो दिस इज समथिंग विच इज AD, and output upon difference of input is this one, and whereas ACM is nothing but V1 plus V2 upon 2. It is V1 plus V2 upon 2, yani it is a common mode gain, and CMRR is nothing but AD upon ACM. Fine. एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लू रेट, इन्फिनाइट स्लू रेट है। इन्फिनाइट स्लू रेट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन्फिनाइट स्लू रेट का मतलब ये होता है जो इसका स्लू रेट है वो इन्फिनाइट है, और ये इक्वल टू होता है dV0 अपॉन dt, यानी इट इज with respect to time and differentiation of output voltage with respect to time. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको अगर हम सम अप करें तो इसका ये सम अप ये है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो VD होता है वो डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस होता है, दैट इज V1 माइनस V2। देन उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल के केस में होता है वो इन्फिनाइट होता है, वर्चुअली हम उसको ओपन मानते हैं। जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, वर्चुअली हम उसको ज़ीरो मानते हैं, और जो आउटपुट होता है द गेन इज नथिंग बट द आउटपुट अपॉन द डिफरेंस ऑफ इनपुट, दैट इज VD। फाइन। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने एक ऑप एम्प ले रखा है, एक ऑप एम्प ले रखा है जिसकी जो VCC है, दैट मीन्स अगर हम इसको वी टेक एन ऑप एम्प with the inverting and non-inverting terminal with VCC as equal to 10 volt, this is the output। तो जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इसमें आ सकता है दैट इज मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज VD हुआ। आई टोल्ड यू VD और कुछ नहीं है, V1 माइनस V2 का डिफरेंस है, और VD इज दिस। तो VD जो आपका है दैट विल कम एज व्हाट, आउटपुट VCC अपॉन द डिफरेंस AD। वाई? बिकॉज AD हम जानते हैं इट इज नथिंग बट VCC अपॉन VD, ये आउटपुट वोल्टेज है अपॉन द डिफरेंस है, तो VD उसी को ही हमने इसमें वो किया है। तो वैल्यू ऑफ VD in this particular case will come out to be 100 microvolts. Now you can see कि जो डिफरेंस वोल्टेज है VD वो सिर्फ 100 माइक्रोवोल्ट्स है, इट्स वेरी माइन्यूट। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पे हम अब ये वर्ड बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का वर्ड इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जो आगे वाले लेक्चर्स में आपको मैं प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। नाउ VDD ये जो कॉन्सेप्ट है इसका वर्चुअल ग्राउंड का, ये हम एक फिगर के से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन गेट इट वेरी क्लियर। इसमें आपने ये देखा कि इससे पहले वाले में, इस पिछले स्लाइड में 100 माइक्रोवोल्ट, a very minute voltage is generated at a power supply of 10 volts। अब इस फिगर में भी सेम चीज़ आप वो देखेंगे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ओवर हियर। ये हमारा VD है, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया ये V1 है, ये V2 है, VD इसका डिफरेंस है, आउटपुट कुछ नहीं है, इट इज़ द गेन इनटू द Vn। अब अगर हमारा 100 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे जनरेट होता है तो दैट मीन्स कि अगर VD 100 माइक्रोवोल्ट की रेंज में ही वर्क करेगा, इससे ऊपर गया तो भी ये
इट विल गो इनटू सैचुरेशन, इससे नीचे गया तो भी इट विल गो इनटू सैचुरेशन. दिस ग्राफ इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग. ये -V1 है और ये +V1 है और ये वो स्लोप है. दैट मीन्स इट इज वर्किंग इन अ लीनियर रीजन एंड ज़रा सा ये डिफरेंस ज़रा सा 100 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा और 100 वोल्ट से नीचे हुआ तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा. तो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस कैन वर्क इन अ लीनियर रीजन. बट यहाँ एक चीज़ और कॉन्सेप्चुअली सामने आती है, वो ये है कि यहाँ पे ये ग्राउंडेड है. यू कैन सी दिस इज ग्राउंडेड. तो ये वर्चुअली 0 वोल्ट है और 0 वोल्ट होने की वजह से 100 माइक्रोवोल्ट के कंपैरिजन में अगर हम ये मानते हैं आइडियल कंडीशंस में कि जब ये 100 माइक्रोवोल्ट सिर्फ में ट्रिगर कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, तो ये बहुत कम छोटा सा वोल्टेज है 100 माइक्रोवोल्ट. तो ये भी हम, जबकि यहाँ ग्राउंडेड नहीं है, बट ये फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं एज 0 वोल्ट, यानी वर्चुअली ग्राउंड मान लेते हैं, क्योंकि 10 वोल्ट पे जब 100 माइक्रो वोल्ट पे 10 वोल्ट इनपुट पे जब 100 माइक्रो वोल्ट VD आ रहा है तो इट इज़ वेरी स्मॉल एंड दिस इज ऑलरेडी वर्चुअली ग्राउंडेड. सो दिस ग्राउंड शिफ्ट्स टू दिस प्लेस एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड. फाइन. वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे भी लेक्चर में बात करेंगे. शॉर्ट में आपको बस ये समझना है कि अगर कोई भी टर्मिनल कहीं ग्राउंडेड है, जैसे यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, तो जो इस नोड पे वोल्टेज होगी 0 वोल्ट, वो इस मोड पे भी शिफ्ट हो जाएगी. और ये कॉन्सेप्ट हमें इससे भी प्रूव होता है कि VD इज नथिंग बट V1 माइनस V2 और आइडियली अगर ये हम माने तो इज इक्वल टू 0. सो V1 इज इक्वल टू V2. फाइन. ये भी एक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करने में इसमें आपको आसानी होगी. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाई डू वी बेसिकली रिक्वायर नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक हम इसलिए चाहते हैं, नेगेटिव फीडबैक का बहुत बड़ा महत्व होता है. नेगेटिव फीडबैक हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने गेन को या अपने डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल करें. सपोज अगर हम इसको ओपन लूप में रखते हैं और नेगेटिव फीडबैक यूज़ नहीं करते, तो आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि ज़रा सी वोल्टेज स्लाइड हुई या अपर साइड या लोअर साइड, तो क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली शिफ्टिंग फ्रॉम वन सैचुरेशन लेवल टू अदर सैचुरेशन लेवल. तो उसको कंट्रोल में कैसे रखें, इस कंट्रोल को रखने के लिए हमें नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है. अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे हमने एक RF नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया है और ये एक हमने यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस R1 लगा दिया है. ये नोड है, मैं इसको आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टिंग द आउटपुट टू द इनपुट. फाइन. और दिस इज द input voltage, this is grounded and this is your input resistance and this is your output. So this feedback resistance basically controls your it is a connection between output and input and it controls your operational amplifier for design purposes. Fine. इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ. ये आप यहाँ पे ये देख लीजिए, दिस इज 0 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो 0 वोल्ट. वाई स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस हियर वी हैव अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड. फाइन. अगर हमें इसको सॉल्व करना होता है तो हम सिंपली जिस नोड पे होते हैं, मैं आगे के लेक्चर्स में भी आपको बताऊंगा, उस नोड को हाईएस्ट पोटेंशियल पे मान लेते हैं. तो ये अगर हम 0 वोल्ट है तो एक इक्वेशन में यहाँ लिखना चाहूँगा, 0 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 0 माइनस V0 अपॉन RF इज इक्वल टू 0. देयरफॉर अगर हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो V0 विल कम आउट टू बी माइनस RF अपॉन R1 Vin. फीडबैक कैसे कंट्रोल करता है गेन को? ये Vin हो गया इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 और ये कुछ नहीं होता, दिस इज गेन, सो इट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1. यानी हम इससे देख सकते हैं ये गेन है हमारा
और ये RF R1 की वैल्यू है। निगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि सप्लाई आपने इन्वर्टिंग पे लगा रखी है, तो ये माइनस साइन दिखा रहा है यहाँ पे। और ये आप RF की वैल्यू को वेरी करेंगे या R1 की वैल्यू को वेरी करेंगे तो आप गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट है नेगेटिव फीडबैक का, जो हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी इसको एनालाइज करेंगे। अब लास्ट में मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखता कैसे है। हम लोग प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ IC जानते हैं, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, एंड आपने सुना होगा दैट इज़ IC 741। ये 8 पिन की IC होती है। इस 8 पिन में आप देख सकते हैं ये नॉच है, तो नॉच के इधर आपका पिन नंबर 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका वही स्ट्रक्चर है। एक साइड आपने इन्वर्टिंग को डाल रखा है, एक साइड आपने यहाँ पे ये नॉन इन्वर्टिंग में टर्मिनल डाल सकता है। दिस इज 6 पिन इज आउटपुट, दिस 7 and 4 इज द पावर सप्लाई, एंड ऑफसेट नल 1 एंड ऑफसेट नल 2, ये आपको यहाँ पे भी क्लेरिफाई हो जाएगा। ऑफसेट नल 1 और 2 क्या होता है, ये एक्चुअली जब हमने वजह से डिस्कस किया कि वी आर गोइंग टू ओनली यूज मैक्सिमम प्रैक्टिकली द आइडियल कंडीशन। तो जो आइडियल कंडीशन में अगर प्रैक्टिकल में कुछ लीकेज होता है वोल्टेज में, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये रेजिस्टेंस होता है। फाइन। So with this friends, now today we had discussed about the basic introduction of operational amplifier, and in the next lecture we will be basically implementing it. मैं आपको इसके बारे में कुछ numericals, formulas बताऊंगा to make it easy and get it solved and work it out as a mathematical amplifier, जैसे इससे adding, summing, subtraction ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, thank you so much.